हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है द सोशल वेलफेयर फंक्शन, यानी कि सामाजिक कल्याण पतन। इसमें सुनिए, द सेकेंड अटेम्प्ट टू रिहेबिलिटेट एंड रिकंस्ट्रक्ट वेलफेयर इकोनॉमिक्स हैज़ बीन मेड इन recent years by modern economists like Bergson, Samuelson, and Tinter. This has taken the form of social welfare function. According to these economists, welfare economics would lose its practical usefulness without value judgments or ethical norms. It would cease to be a guide for practical policy measures. In the absence of value judgments, the very objective of welfare economics would stand defeated. Without value judgments, according to these economists, if the economist does not have his own value judgments, he may import them from outside, say from outside persons or even outside disciplines. Example, disciplines external to economics. Value judgments are thus an essential prerequisite for the promotion of economic welfare. It is on this ground that these economists look upon welfare economics as essentially a normative study, dealing with things as they ought to be. It is only with the help of ethical norms that the welfare economist can offer practical policy measures for promoting economic welfare of society. Despite the normative character of welfare economics, these economists firmly believed that it could be a scientific discipline. In other words, the scientific status of welfare economics would not be whittled down by its normative character. अब सुनिए हिंदी में। नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र की प्रमुख आलोचना यह रही है कि इसमें आय के वितरण के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इसके कारण नैतिक निर्णय की बात आती है। अतः बर्गसन, सैमुअल्सन, लिटिल तथा एरी ने सामाजिक कल्याण के विचार को प्रस्तुत किया, जो कि सामाजिक फलन के नाम से प्रसिद्ध है। सामान्यतः आर्थिक परिवर्तन कुछ व्यक्तियों की स्थिति में सुधार करते हैं और कुछ की स्थिति को खराब कर देते हैं। अतः इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक कल्याण में परिवर्तनों को जानने के लिए उपयोगिता की अंतःव्यक्तिक तुलनाएं, यानी कि इंटरपर्सनल कंपैरिजंस ऑफ यूटिलिटी जरूरी है, और अंतःव्यक्तिक तुलनाएं कुछ नैतिक निर्णयों या नैतिक मान्यताओं, यानी वैल्यू जजमेंट ऑफ एथिकल एज्यूम्शंस के संदर्भ में ही की जा सकती है। इस प्रकार इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार कल्याण विश्लेषण, वेलफेयर एनालिसिस के नैतिक निर्णयों को स्पष्ट रूप से प्रवेश करना पड़ेगा। इस प्रकार इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार कल्याणवादी अर्थशास्त्र आवश्यक रूप से एक आदर्शात्मक अध्ययन है और केवल कुछ नैतिक आदर्शों के संदर्भ में ही अर्थशास्त्री अर्थपूर्ण कल्याण दशाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, और तभी यह एक वैज्ञानिक आदर्शात्मक अध्ययन बना रह सकता है। अब आती है इसकी डेफिनेशंस, यानी कि परिभाषाएं। सुनिए, थोड़ा सा और बता दूं। इन देयर अटेम्प्ट टू रिहेबिलिटेट एंड रिकंस्ट्रक्ट वेलफेयर थ्योरी, these economists have introduced into their analysis a new instrument known as the social welfare function. What is this social welfare function? It is a set of value, judgment or ethical norms
including norms about income distribution which are obtained by welfare economics. Economists from diverse sources, for example, अब सुनिए definition. The judgment as to what constitute justice and virtue in distribution may be those of the economist himself or those set up by legislator, by some other government authority or by some other unspecified person or group. Whatever the sources, these value judgments are purely ethical judgments about the desirability or otherwise of certain alternative ends. It is with the help of these judgments that the economists are able to say which of the various alternative economic policies is social the most desirable. The social welfare function is deduced from these value judgments which as said above are obtained from diverse sources. In other words, the social welfare function is a device by which a social scale of preferences could be derived from individual scales of preference. The social welfare function is thus constructed on the basis of the preferences of the individuals comprising society. The social welfare function may either be forced on society by some paternalist dictator or attained through some common conscience. आगे सुनिए, हिंदी में सुनिए. सामाजिक कल्याण फलन उन सब तत्वों को या चरों को बताता है जिन पर समाज के सभी व्यक्तियों का कल्याण निर्भर करता है. सामाजिक कल्याण फलन प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण का फलन समझा जाता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण पर निर्भर करता है, न केवल अपने स्वयं के कल्याण पर, साथ ही उसकी दृष्टि में समाज के सभी सदस्यों के कल्याण के वितरण पर भी निर्भर करता है. सामाजिक फलन का एक बहुत विस्तृत और सामान्यीकृत विचार इस अर्थ में है कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण वस्तुओं और सेवाओं के केवल अपने स्वयं के उपभोग पर नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के उपभोग पर भी निर्भर करता है. समाज के सदस्यों में आय के वितरण के संबंध में उसके अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और यह व्यक्तियों के कल्याण के अन्य सभी संभव निर्धारक तत्वों को शामिल करता है. सामाजिक कल्याण फलन उपयोगिता के क्रमवाचक विचार का प्रयोग करता है. यह स्पष्ट नैतिक निर्णयों के एक समूह को प्रदान करता है जिसके आधार पर व्यक्तियों की उपयोगिताओं अर्थात कल्याणों का योग किया जा सकता है ताकि सामाजिक कल्याण फलन प्राप्त किया जा सके. इस प्रकार सामाजिक कल्याण फलन एक प्रकार का सामूहिक उपयोगिता फलन है. सामाजिक कल्याण फलन का रूप नैतिक निर्णयों पर निर्भर करता है जो कि सामान्यतः अर्थशास्त्र के बाहर से दिए जाते हैं और जिनके आधार पर आर्थिक निर्णयों, आर्थिक नीतियों की सामाजिक वांछनीयता का मूल्यांकन किया जाता है. चूंकि सामाजिक कल्याण के संबंध में नैतिक निर्णयों द्वारा ही सामाजिक कल्याण के स्तर में परिवर्तन मालूम किया जाता है, अतः हम यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसे नैतिक निर्णय कौन ले. वस्तुतः नैतिक निर्णय लेने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि महत्व देते हुए निष्पक्ष रूप से निर्णय ले. बर्गसन और सैमुअलसन ने इस संदर्भ में एक महात्मा की कल्पना की है जो समाज के कल्याण में परिवर्तन के संबंध में कोई नैतिक निर्णय लेता है. वह महात्मा ही सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए निर्णय
लेता है कि समाज में किन वस्तुओं का उत्पादन हो, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और समाज में आय और संपत्ति का वितरण किस प्रकार होना चाहिए आदि। महात्मा के इन सभी निर्णयों को समाज के सभी व्यक्तियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि स्वयं समाज ने ही महात्मा को निर्णय लेने का अधिकार यह सोचकर दिया है कि वह सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखकर निर्णय लेगा। इस प्रकार एक महात्मा की कल्पना द्वारा हम उपयोगिता की अंतर्वैयक्तिक तुलना, उपयोगिता के मापने, जोड़ने तथा घटाने आदि की समस्याओं से मुक्ति पा जाते हैं। फर्गसन और सैमुअल्सन ने जिस महात्मा की कल्पना की है उसके सभी नैतिक अथवा मूल्यगत निर्णय परस्पर संगत होने चाहिए। नैतिक निर्णय के परस्पर संगत होने से तात्पर्य यह है कि किसी दी हुई परिस्थिति में यदि वह एक्स और वाई की तुलना में अधिक पसंद करता है और वाई को जेड की अपेक्षा अधिक मान देता है तो उसे एक्स को जेड से भी अधिक अधिमान देना चाहिए। अब इसके आते फीचर्स ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शंस, यानी कि सामाजिक कल्याण फलन की विशेषताएं। सुनिए, देयर आर ऑब्वियसली टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द सोशल वेलफेयर फंक्शन। वन मेथड इज टू टेक इनटू account the preferences of one particular individual and build up the social scale of preferences on the basis of these preferences. But this method would not yield a satisfactory and reliable social welfare function unless the entire population of the country happens to be homogeneous in matter of tastes, temperaments and aptitudes. These preferences are later on reduced to one single function by majority of votes. But as pointed out by Donald Dewey, however much we may wish to respect the individual preferences in social choice, the authorization element cannot be reduced to zero. This social welfare function is thus an important theoretical device which completes the फॉर्मल मैथमेटिकल सिस्टम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यह व्यक्ति के कल्याण को प्रभावित करने वाले तत्वों के संयोग की क्रमवाचक व्यवस्था पर आधारित है, अर्थात यह उपयोगिता के क्रमवाचक विचार का उपयोग करता है। सामाजिक कल्याण फलन नैतिक निर्णयों को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करता है और यह उपयोगिता की अंतर्वैयक्तिक तुलनाओं की आज्ञा देता है। यह स्वभाव में अत्यधिक समान इस अर्थ में है कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण निर्भर करता है न केवल प्रत्येक व्यक्ति की आय और धन पर बल्कि समाज के अन्य सदस्यों का कल्याण व धन के वितरण पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।